ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے تنگ مت کرو، میں نے آج یونیورسٹی نہیں جانا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سکینہ نے چادر دوبارہ سے سر پر تان لی۔ ایسے کیسے نہیں جاؤ گی تم؟ آج اسٹوڈنٹس ڈے ہے، اتنے مزیدار سٹالز لگ رہے ہیں، میں تو ابھی سے بہت پرجوش ہوں اور تم یہاں پر مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ اگر تم 5 منٹ کے اندر نہ اٹھی تو میں پانی کی پوری بالٹی تمہارے اوپر گرا دوں گی۔ آمنہ، جو کہ سکینہ کی چچا زاد بہن تھی اور انہی کے گھر انہی کے ساتھ رہتی تھی، اس نے سکینہ کو کھلے عام دھمکی دی اور اس کی دھمکی کام بھی کر گئی۔ سکینہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور آمنہ کو کوستی ہوئی واش روم میں گھس گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آمنہ اپنی بات کی پکی ہے۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ پانی کی بالٹی بھی اس پر گرا دیتی، اور اس قدر سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہانا سراسر بے وقوفی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی۔ اس کے لال بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جبکہ اس کی دودھیا رنگت دھل کر مزید چمکنے لگی تھی۔ آمنہ چند لمحے مبہوت بنی اسے دیکھتی رہی اور پھر خود ہی اس کی نظر اتار لی۔ لگتا ہے کہ آج تمہارا بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، اپنی کزن کی دل کھول کر تعریف کیا کرتی تھی۔ اس کی تعریف پر سکینہ شرما گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کا چہرہ گھومنے لگا جو ہمیشہ ہی پرشوق نظروں سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ اس کی نگاہیں اسے پریشان کر دیتی تھی۔ سکینہ نے فوراً اپنے اس خیال کو جھٹکا اور آمنہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سکینہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جو بے حد حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد لاڈلی بھی تھی۔ اس کی کوئی بھی خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اس چیز نے اسے نک چڑھا بنا دیا تھا۔ اس کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ غریبوں کو خود سے کم تر سمجھتی تھی اور ان سے بات کرنا تو دور، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کرتی تھی۔ جبکہ آمنہ، جو اس کی چچا زاد بہن تھی، وہ لوگ کچھ عرصہ پہلے ہی ان کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ سکینہ کی دادی چاہتی تھیں کہ وہ آخری وقت اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گزاریں۔ آمنہ سکینہ سے یکسر مختلف تھی۔ وہ بہت ہنس مکھ تھی اور ہر کسی کے ساتھ گھلنے ملنے والی تھی۔ اس سے کئی زیادہ وہ شرارتی تھی۔ اس کی شرارتوں سے نہ صرف گھر والے بلکہ پورا محلہ ہی تنگ تھا۔ ہر کوئی اس سے پناہ مانگتا تھا اور اسے شیطانی بلی کہتا تھا، جبکہ آمنہ ان باتوں سے بالکل بے نیاز اپنی شرارتوں میں ہر وقت مگن رہتی۔ دن میں 3-4 بار اس کے گھر والوں سے عزت افزائی بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن اسے تو جیسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی منمانی کرنے والی تھی۔ آج بھی سکینہ جانتی تھی کہ وہ یونیورسٹی جا کر ضرور کوئی نہ کوئی پھڈا کرے گی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی، کیونکہ وہ مزید کسی بھی قسم کا ڈرامہ نہیں چاہتی تھی۔ لیکن وہ آمنہ ہی کیا جو سکینہ کی بات مان لے۔ اس نے زبردستی سکینہ کو تیار کیا اور اپنے ساتھ یونیورسٹی لے گئی۔ اس دن سکینہ کا ڈرائیور چھٹی پر تھا، اسی وجہ سے مجبوراً سکینہ کو خود ڈرائیونگ کرنی پڑی۔ جب وہ دونوں یونیورسٹی پہنچی، ایونٹ سٹارٹ تھا۔ آمنہ نے دل کھول کر ہلہ گلا کیا، جبکہ سکینہ مجبوراً اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اس دوران وہ خود پر کسی کی نظروں کی تپش کو صاف محسوس کر رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اس نے 1-2 بار اپنے آگے پیچھے دیکھا، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے اسے اپنا وہم قرار دے دیا اور دوبارہ چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ اس سے جدا ہو گئی اور اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ چلی گئی۔ اب سکینہ بینچ پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں پر بیٹھے اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے نظروں کی تپش دوبارہ محسوس ہونے لگی۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے کی عالم میں جب اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہاں وہی شخص کھڑا تھا جس کی کانچ جیسی نیلی آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کا ہنر رکھتی تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی سکینہ کو پتہ چلا تھا کہ وہ ان کا سینئر ہے اور اپنے یونیورسٹی کا مشہور ترین اسٹوڈنٹ ہے، جس کی نہ صرف اساتذہ بلکہ ہر اسٹوڈنٹ کی زبان پر صرف اور صرف تعریفیں ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ بہت نک چڑھا اور موڈی ہے، جو فالتو کسی سے بات نہیں کرتا اور لڑکیوں سے تو 50 فٹ کے فاصلے پر رہتا ہے۔ سکینہ نے جب یہ سنا تو طنزیاں ہنس دی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی سکینہ کو لوفروں کی طرح دیکھتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ سکینہ نے اس کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے کہ وہ سکینہ کے قریب آ کر رکا، سکینہ اسے سخت سنانے لگی تھی، لیکن پھر یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ اس نے سکینہ کا بریسلٹ اس کے سامنے لہرایا۔
یہ بریسلیٹ سکینہ کو اس کے بابا نے گفٹ کیا تھا اور جو اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ سکینہ جو سوچ رہی تھی کہ خود کو گھورنے پر وہ اسے باتیں سنائے گی، یکدم ہی خاموش ہو گئی اور شکریہ بول کر وہ بریسلیٹ لے لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس شخص نے نہ ہی اس کے شکریہ کا کوئی جواب دیا اور نہ ہی اسے کوئی بات کی، بلکہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا، جبکہ سکینہ منہ کھولے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا۔ وہ غصے کے عالم میں آمنہ کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس اچانک افتاد پر آمنہ بھی پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، جبکہ سکینہ کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اسے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی نے سکینہ کو یا اس کی کسی بات کو اگنور کیا ہو، تو پھر یہ کس کھیت کی مولی تھا؟ سارا راستہ آمنہ سکینہ سے پوچھتی رہی کہ آخر ماجرا کیا ہوا ہے، لیکن سکینہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ گھر جانے کی بجائے وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑائے جا رہی تھی۔ وقت بیتتا جا رہا تھا، شام کے سائے بلند ہو رہے تھے۔ ایسے میں یوں سڑک پر تنہا لڑکیوں کا گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف ان کے گھر والے مسلسل انہیں کال کر رہے تھے، کیونکہ اکثر وہ شام 4 بجے گھر پہنچ جایا کرتی تھیں، جبکہ ابھی شام کے 6 بج رہے تھے۔ سردیوں کی شامیں تھیں، جلد ہی اندھیرا ہو جاتا تھا۔ اچانک گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ گاڑی ایک ویرانے میں جا کر خراب ہوئی تھی۔ گاڑی کو رکتا دیکھ کر دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ قریب ہی ایک جنگل تھا جس سے جانوروں کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ قدرے سنسان علاقہ تھا۔ یہاں کم ہی لوگ آیا جایا کرتے تھے، جبکہ دائیں طرف ہی ایک بہت بڑا قبرستان بنا ہوا تھا۔ سکینہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ خوف کے تاثرات اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہے تھے، جبکہ آمنہ دوبارہ سے نارمل ہو گئی اور کہنے لگی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں گاڑی کو کیا ہوا ہے۔ وہ گاڑی سے اتر گئی، اس کے پیچھے سکینہ بھی اتر گئی۔ بونٹ اٹھا کر انہوں نے چیک کیا تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر گاڑی کیوں نہیں چل رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ کسی بدروح نے ہمیں زبردستی یہاں پر روک لیا ہے، آمنہ نے پراسرار آواز میں کہا۔ اس کی بات سن کر سکینہ نے ایک زوردار چیخ ماری۔ آمنہ نے جلد ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، مذاق کر رہی ہوں؟ بے وقوف عورت، تمہیں بھی موقع چاہیے ہوتا ہے چیخنے چلانے کا۔ اب چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ کیا مطلب؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو راستہ بھی نہیں پتا، ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو تو راستہ بھی مل جائے گا اور پتہ بھی چل جائے گا، بس زیادہ سوال مت کیا کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر والوں کو کال کرنی چاہیے اور انہیں مدد کے لیے بلانا چاہیے۔ یہ کہہ کر سکینہ نے موبائل فون نکالا، لیکن اس کی سروس نہیں آ رہی تھی۔ مایوسی سے اس نے موبائل دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف آمنہ بے فکر تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلو تھوڑا آگے چل کر دیکھتے ہیں، شاید سروس بھی آ جائے، پھر گھر میں کال کر لیں گے۔ آمنہ کو ایڈونچرز کرنے کا ہمیشہ سے ہی شوق تھا، اور آج بھی اس کی ایڈونچر کی وجہ سے سکینہ مجبوراً اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ قریب ہی ایک قبرستان تھا۔ جب سکینہ نے دیکھا کہ آمنہ قبرستان کے اندر داخل ہو گئی ہے، اس نے آمنہ کا بازو پکڑ لیا اور کہا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس پہر قبرستان میں کون جاتا ہے؟ کیا تم نے موویز میں دیکھا نہیں ہے کہ اس وقت وہاں جانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی باتیں سن کر آمنہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم بھی کیا ان فضول کی موویز پر یقین رکھتی ہو؟ یہ سب انسان کے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلو، مجھے وہاں پر روشنی نظر آ رہی ہے، ضرور وہاں پر کوئی ہوگا جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اگر یہیں پر بیٹھے رہے تو کسی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ سکینہ مسلسل انکار کر رہی تھی، جبکہ آمنہ اسے زبردستی گھسیٹ کر قبرستان کے اندر لے گئی۔ روشنی قریب ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر پتہ چلا کہ وہاں پر آگ جل رہی تھی اور سامنے ہی کوئی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آمنہ کو ایک شرارت سوچی۔ اس نے پاس پڑا ہوا پتھر اٹھا لیا۔ اس کو پتھر اٹھائے دے کر سکینہ نے اسے تنبیہ کی اور کہا کہ کوئی بھی فضول حرکت مت کرنا، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، ورنہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ جبکہ آمنہ تو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے وہ پتھر زور سے آگ میں دے مارا۔ پتھر آگ میں پھینکنے کی دیر تھی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا قبرستان خوفناک چیخوں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں خوفزدہ ہو گئی۔ یکدم ہی اس بوڑھے آدمی نے آنکھیں کھولی
اس کی آنکھیں غصے اور شدت غم سے لال ہو رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی آنکھیں خون ابل دیں گی۔ وہ غصے سے آمنہ کو گھورے جا رہا تھا۔ آمنہ خود پر سے اس کی نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا جسم ساکن ہو گیا تھا جبکہ پاؤں زمین پر جم گئے تھے۔ دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ سکینہ نے ہوش سے کام لیا اور آمنہ کا بازو پکڑ کر تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ دونوں جلدی سے قبرستان سے باہر نکل آئے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ آمنہ ابھی بھی پیچھے دیکھ رہی تھی جبکہ سکینہ اسے کھینچ کھینچ کر آگے لے کر جا رہی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ ان کی گاڑی چل پڑی تھی۔ سکینہ نے جلدی سے ریورس لیا اور گاڑی کو اپنے راستے پر دوڑا دیا۔ اچانک آمنہ کے کانوں میں ایک خوفناک آواز گونجی، تم میرے شر سے نہیں بچ پاؤ گی، میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گی۔ یہ آواز سننے کی دیر تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر سکینہ کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گھر والوں کو کیا جواب دے گی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ آمنہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ لاؤنج میں تمام گھر والے جمع تھے اور پریشانی سے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ سکینہ جیسے ہی گاڑی لے کر گھر میں داخل ہوئی سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے آمنہ کو بے ہوش دیکھا تو وہ مزید پریشان ہو گئے اور سکینہ سے پوچھنے لگے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ سکینہ نے بات گول مول کر دی اور کہا کہ کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا تھا، سارا دن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دادی ابھی مشکوک نظروں سے سکینہ کو دیکھ رہی تھی کیونکہ سکینہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اس وقت سکینہ سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور بات کو ادھر ادھر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ جائے گی۔ آمنہ کی امی کافی دیر تک آمنہ کے پاس بیٹھی رہیں۔ سکینہ نے اسے کہا کہ آپ جا کر آرام کریں، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ سکینہ بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اگر آج وہ پھنس جاتی یا اس بوڑھے آدمی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے اس کا حساب تو ان دونوں کو ہر حال میں ہی چکانا ہوگا۔ اب اس کا پہلا شکار آمنہ تھی، آمنہ کے بعد اس کا دوسرا شکار سکینہ تھا۔ سکینہ سوچوں میں گم تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آمنہ کا جسم حرکت کر رہا ہے، سکینہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور آمنہ سے پوچھنے لگی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آمنہ نے آنکھیں کھولی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں برسوں سے تھکی ہوئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ سکینہ اس کو اس حالت میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، مجھے اس سے بچا لو۔ آمنہ نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دے کر سکینہ پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ کون تمہیں مار دے گا؟ کون تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے اسے اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے گا۔ ہم نے اس کا عمل خراب کر دیا ہے۔ پہلے وہ مجھ سے بدلہ لے گا اور اس کے بعد وہ تمہاری طرف آئے گا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کسی طرح اس سے پیچھا چھڑوانا ہوگا۔ آمنہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر دوبارہ بستر پر گر پڑی، جبکہ سکینہ نے اپنا سر تھام لیا۔ سکینہ اسی سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی نظر کمرے میں موجود واحد شیشے پر پڑی۔ اسے شیشے میں کسی کا عکس کھڑا نظر آیا۔ جب سکینہ نے اپنے دائیں طرف دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ شیشے میں اسے کوئی انسان کھڑا نظر آ رہا تھا۔ سکینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پہلے وہ عکس دھندلا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ وہ صاف ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ پاتی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور آمنہ کی امی یعنی سکینہ کی چچی کمرے میں کے اندر داخل ہوئیں۔ آمنہ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا اسے ہوش آیا؟ چچی نے پریشانی سے پوچھا۔ سکینہ نے انہیں آمنہ کی حالت کے بارے میں نہیں بتایا اور انہیں کہا کہ ابھی تک یہ ہوش میں نہیں آئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ دونوں کیا کر کے آئی ہیں، لیکن زیادہ دیر تک وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ دن بھر کی تھکن سے سکینہ کا برا حال تھا، اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ بھی آمنہ کے پہلو میں سو گئی۔ رات
तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब आमना के जिस्म को एक झटका लगा और वो अपने बिस्तर पर उठ बैठी। उसका जिस्म अपने काबू में नहीं था, उसका जिस्म किसी और के ही बस में था। खुद ब खुद ही उसके पांव बेड से नीचे उतरने लगे। आमना के दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रोक नहीं पा रही थी, ना ही उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, जबकि पहलू में ही सकीना पुरसकून नींद सो रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और आमना खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद हो गया। अब आमना का रुख घर के पिछले हिस्से बने एक छोटे से बाग की तरफ था। उसी बाग में एक पुराना कुआं भी था। आमना के कदम उस कुएं की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आमना को लग रहा था जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया हो। अभी वो उस कुएं के पास पहुंची ही थी कि उसका जिस्म दोबारा आज़ाद हो गया। वो वहां से भागने का सोच ही रही थी कि किसी ने उसका पांव पकड़ा और कुएं के अंदर खींच लिया। पानी के अंदर आमना का सांस बंद हो रहा था। वो खुद को किसी की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसे अपनी गर्दन पर किसी के मजबूत हाथों की गिरफ्त महसूस होने लगी। इससे पहले कि उसकी सांसें उखड़ने लगतीं, किसी ने उसको छोड़ दिया और वो दोबारा बेहोश हो गई। सुबह जब सकीना की आंख खुली, उसने देखा आमना उसके पहलू में नहीं थी। ये देखकर वो परेशान हो गई और तेजी से बाहर की तरफ भागी। उसे परेशान देखकर घर वालों ने जब पूछा तो सकीना ने उन्हें बताया कि आमना अपने कमरे में नहीं है। सब घर वाले उसे तलाश करने लगे। अचानक आमना के भाई के शोर की आवाज़ पर सब मुतवज्जो हुए। बाहर जाकर उन्होंने देखा तो आमना का पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था। पूरे घर में वावेला मच गया। उसके भाई ने जल्दी से उसे बाजुओं में उठाकर गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गए। तकरीबन 12 घंटों के बाद आमना की हालत थोड़ी बेहतर हुई। होश में आने के बाद वो कोई बात ही नहीं कर रही थी, बल्कि खामोशी से दीवार को घूरे जा रही थी। सब घर वाले उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है, लेकिन वो किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। सकीना ने सब घर वालों को बाहर जाने का कहा और कहा कि मैं खुद आमना से बात करूंगी। वो आमना के पास जाकर बैठी ही थी कि आमना की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। आमना कहने लगी, मैं बहुत बेबस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो मुझ पर हावी होती जा रही है। वो मुझे अंदर ही अंदर से कमज़ोर कर रही है। वो बहुत जल्द मुझे ख़त्म कर देगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। सकीना ने आमना को अपने सीने से लगा लिया। अपनी दोस्त और जिगरी यार को इस हालत में वो नहीं देख सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो घर वालों को इस वाक़ये के बारे में बता देगी, ताकि कुछ ना कुछ हल निकाला जा सके। आमना अभी तक अस्पताल में ही एडमिट थी, जबकि उसके घर वालों ने उसे घर वापस भेज दिया था। पहले ही उसकी यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो गई थी, इसीलिए घर वाले नहीं चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई को मज़ीद ज़ाया करे। और जहाँ तक आमना का ताल्लुक था तो डॉक्टर ने उन्हें ये कहा था कि ये ज़हनी लिहाज से ठीक नहीं है, ये किसी परेशानी का शिकार है। इसे जितना खुश रख सकते हैं उतना खुश रखें और इससे उसका मसला पूछने की कोशिश करें। सकीना रात को अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। घर में दादी और उसकी अम्मी के अलावा उसका एक कज़न था, जबकि बाकी लोगों का अस्पताल में ही थे। सकीना ने वहीं लेटे लेटे फैसला किया कि वो अभी दादी को जाकर बताना चाहिए। वो उठने ही लगी थी कि किसी ने उसे दोबारा बिस्तर पर धक्का दे दिया। इस उफ्ताद पर वो परेशान हो गई और खौफजदा नज़रों से अपने आस पास देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उसे कमरे में किसी और वजूद की मौजूदगी का एहसास होने लगा। उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है। उसने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन दोबारा ही ऐसा हुआ। इस बार धक्का पहले की निस्बत ज़्यादा ज़ोर से था। अचानक कमरे में एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताने की कोशिश की तो अगले ही दिन तुम्हारी दोस्त की लाश तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने पड़ी होगी। आवाज़ में खुली धमकी थी। ये सुनकर सकीना खौफज़दा हो गई। आंसू तेज़ी से उसकी आंखों से बह रहे थे। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दोस्त की कैसे मदद करे। ना तो वो किसी को बता सकती थी और ना ही खुद उसके लिए कुछ कर सकती थी। आखिर ऐसा कौन सा रास्ता था जिसे अपनाकर वो अपनी दोस्त को उस दलदल से निकाल पाती। वो पूरी रात सकीना की रोते हुए गुजरी।
सुबह उसकी आंखें रात जागने की वजह से लाल थीं। न चाहते हुए भी वो सुबह यूनिवर्सिटी चली गई। काफ़ी दिन गैर हाजिरी की वजह से सभी उसके लिए परेशान थे, क्योंकि वो काफ़ी मकबूल स्टूडेंट थी। पढ़ाई के लिहाज से बाकी सरगर्मियों में भी हमेशा आगे ही रहती थी। हर किसी के चेहरे पर उसके लिए परेशानी थी, सिवाय एक चेहरे के जो उसे पुरसोच नज़रों से घूरे जा रहा था। सकीना को जब अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश का एहसास हुआ तो उसने नज़रें उठा कर देखा। सामने वही चेहरा था जो हमेशा ही उसके आसपास मौजूद होता था। सामने ही अहमद खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा था, जबकि उसकी आंखें सकीना को घूरे जा रही थी। अचानक उसकी आंखें चमकी और उसकी आंखों का रंग तब्दील हुआ। सकीना ये देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वो उसके करीब जाती और उससे कुछ पूछती, अहमद अचानक ही से वहां से पलट गया। आज के दिन ये दूसरा झटका था जो सकीना को लगा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की आंखों का रंग यकदम ही तब्दील हो जाए। वो पूरा दिन सकीना बहुत बोर गुजरा। छुट्टी से थोड़ी देर पहले ही उसने अपने ड्राइवर को कॉल कर दी कि उसे लेने के लिए आ जाए। वेटिंग एरिया में इंतज़ार करने की बजाय वो लाइब्रेरी में चली गई। उस वक्त लाइब्रेरी में चंद ही स्टूडेंट थे। वो स्टूडेंट से थोड़े दूर फासले पर जाकर बैठ गई। वहां पर बैठे उसे थोड़ी सी देर गुजरी थी जब उसे कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई। उसने गर्दन उठाकर देखा, सामने अहमद खड़ा था। मुझे बताओ, ये सब कब से शुरू हो रहा है? अहमद ने उसे बराह रास्त सवाल किया। उसकी बात सुनकर सकीना हकलाने लगी और कहने लगी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मज़ीद खुद को मुश्किल में फंसाने से अच्छा है कि अपने घर वालों को इस बारे में बताओ, वरना वो बदरू तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों का खौफ ही उसकी ग़िज़ा है। तुम लोग उससे जितना खौफज़दा होगे वो इतनी ही तुम लोगों पर हावी होगी। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त जिंदा बच जाए तो अभी भी अपने घर वालों को बताओ, ताकि वो किसी आमिल से राब्ता कर सकें या उसके लिए कोई अमल कर सकें। ये कहकर अहमद वहाँ रुका नहीं, बल्कि वहाँ से उठकर चला गया, जबकि सकीना पीछे उसे आवाज़ें देती रह गई। वो उसके पीछे भी भाग कर आई, लेकिन वो उसे कहीं भी ना दिखा। अचानक सकीना के मोबाइल पर कॉल आई। उसने देखा कि उसके ड्राइवर की कॉल थी। वो खामोशी से बाहर चली गई। वो गाड़ी में बैठी अहमद की बातों के बारे में सोच रही थी। उसी की बातों को सोचते सोचते उसने बेसाख्ता अपनी अम्मी को कॉल मिला ली। बेल जा रही थी, जबकि अभी तक किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। बेसाख्ता जब उसने गाड़ी के शीशे में देखा तो उसकी सांसें उखड़ने लगीं। ड्राइवर का चेहरा इंतहाई मकरू था, जबकि उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसके मुंह से एक इंतहाई खौफनाक आवाज़ निकली, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी दोस्त जिंदा बचे। अगर तुमने अभी किसी को भी बताया तो तुम्हारी दोस्त की मौत तुम्हारी वजह से होगी। सकीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। उसको चिल्लाता देखकर ड्राइवर डर गया। उसने जल्दी से गाड़ी रोक ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सकीना बेगम को एकदम हो क्या गया है। उसने सकीना को आवाज़ दी और खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन सकीना तो जैसे अपने होश में ही नहीं लग रही थी। ड्राइवर ने जब ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर उसे खामोश करवाने की कोशिश की तो सकीना ने एकदम अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि अब वहाँ पर कोई भी खौफनाक इंसान नहीं था, बल्कि उसका ड्राइवर था, जिसकी शक्ल आम इंसानों की तरह ही थी। सकीना के खामोश होने पर ड्राइवर फिक्रमंदी से पूछने लगा, बीबी जी आपको क्या हो गया था? सकीना की आंखों से खुद ब खुद आंसू बह रहे थे, लेकिन सकीना ने जल्द ही अपने आंसू पर काबू पाया और कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम गाड़ी चलाओ। वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। वो बदरू उसे अंदर ही अंदर कमज़ोर बना रही थी। वो उन्हें जितना डराने की कोशिश कर रही थी, सकीना और आमना उससे उतना ही डर रही थी। आज की रात सकीना के पास आखिरी मौका था किसी को बताने का। अगर आज सकीना किसी को भी ना बताती तो रात को लाजमन आमना की मौत हो जानी थी। आज की रात अमावस की रात थी और उस बदरूह ने अपना अमल पूरा करने के लिए आमना के जिस्म में दाखिल होना था और फिर उसे अपने मकसद में कामयाब होना था। इसी वजह से वो सकीना को बार बार भटका रही थी और उसके सामने मुख्तलिफ चेहरों में आकर उसे डरा रही थी, ताकि वो डर जाए और किसी को भी इस बारे में ना बताए। दूसरी तरफ जैसे जैसे शाम के साए गहरे होते जा रहे थे, वैसे वैसे आमना की सेहत गिरती जा रही थी।
यूं लग रहा था जैसे उसके जिस्म से कोई खून निचोड़ रहा हो। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए थे। न जाने उसे ऐसी कौन सी बीमारी लग गई थी जिसकी किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ दादी के जहन में अचानक झमाका हुआ, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनकी पोती की तबीयत उन्हें कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर ये कोई बीमारी होती तो ज़रूर डॉक्टरों के इल्म में आ जाती, लेकिन ये कोई और ही चक्कर था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मुझे लग रहा है कि इस पर किसी चीज़ का साया हो गया है। यही वजह है कि इसकी हालत बेहतर नहीं हो रही। तुम्हें याद है जब उस दिन ये दोनों घर वापस आई थी तो ये दोनों कितनी खौफजदा थी। कोई भी इनमें से ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहा था। पूछने पर इन्होंने बताया कि आमना की तबीयत खराब हो गई थी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके बेटे उनकी बात सुनकर बेसब्री से कहने लगे, अम्मी आप क्या कहना चाहती हैं? आप ठीक तरह बोलें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मुझे कोई शैतानी अमल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आमना पर किसी का साया है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसा कैसे हो सकता है? आमना के अब्बा ने झुंझलाते हुए कहा। वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे, इसी वजह से अभी भी वो अपनी माँ की बात सुनने को तैयार नहीं थे। जबकि इस बार सकीना की दादी अपनी बात पर बज़िद थी और बार बार अपने बेटे को कह रही थी कि उनके ख़ानदान में जो मशहूर आमिल है उनको बुला कर लाएं। आमना के अब्बा ने यह कहकर बात डाल दी कि वो कल ही उस आमिल को ले आएंगे। वो नहीं जानते थे कि आज का काम कल पर छोड़ना उन्हें कितने बड़े नुकसान से दो चार करेगा, ऐसा नुकसान जिसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सकीना की दादी ने जब उनसे इस बारे में बात की तो सकीना के सामने उस बदरूह का चेहरा घूमने लगा। खौफ के मारे उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसी वजह से उसने ना में गर्दन फौरन हिला दी और फौरन दादी की नज़रों के आगे से हट गई। सकीना खुद भी नहीं जानती थी कि आज की रात उन तमाम घर वालों पर कितनी भारी होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ जिनज़ादा अहमद सकीना के लिए परेशान हो चुका था। उसने जब सकीना को देखा तो उस पर उस बदरूह के साए को महसूस कर लिया था। अब उसने किसी तरह सकीना को उस बदरूह से बचाना था। सकीना की दोस्त के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब बहुत वक्त बीत चुका था। आज आखिरी रात थी। उसकी दोस्त पूरी तरह उस बदरूह के शिकंजे में आ गई थी। अब उसने जो भी करना था सकीना के लिए ही करना था। इसके लिए सबसे पहले उसने सकीना के सामने हाजिर होना था और उसे अपनी असलियत बतानी थी, ताकि फिर आगे के लिए वो कोई लाहे अमल तैयार कर सके। रात के 12 बजे का वक्त था। आमना की आंख खुद ब खुद एक शोर की आवाज़ पर खुली। यूं लग रहा था जैसे कोई बच्चा ऊंची ऊंची आवाज़ में गला फाड़ कर चिल्ला रहा हो। उसने देखा वो अस्पताल के कमरे में बिल्कुल अकेली थी, जबकि रात सोने से पहले उसकी अम्मी भी उसके साथ ही थी। शोर की आवाज़ उसे बेचैन कर रही थी और आराम से लेटने नहीं दे रही थी। इसी वजह से वो अपने बिस्तर पर उठ बैठी और उस आवाज़ का ताक़ुब करने लगी। पूरा अस्पताल खाली और वीरान पड़ा था। यूं लग रहा था जैसे यहाँ पर बरसों से कोई भी ना आया हो। अब आमना को कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। वो पीछे पलटने का सोचने लगी, लेकिन उसका जिस्म फिर किसी और के काबू में चला गया। वो अपने वजूद पर अपनी मर्जी नहीं चला पा रही थी, बल्कि किसी और के इशारों पर चल रही थी। वो गैलरी में सीधी चलती जा रही थी। सामने ही एक कमरा था। जैसे ही वो कमरे के सामने पहुंची, दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुल गया। पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें जब कुछ देखने के काबिल हुईं तो उसे किसी शख्स का अक्स नज़र आया। अचानक ही पूरा कमरा रोशनी से भर गया। सामने का मंजर जब उसने देखा, उसे लगा कि उसका दिल निकलकर हाथ में आ जाएगा। सामने एक इंतहाई बदसूरत औरत बैठी हुई थी, जिसने अपने हाथ में एक हथियार उठा रखा था। वो अपने चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट लाए आमना को देखे जा रही थी और मुसलसल एक ही बात कह रही थी, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने मेरा काम किस कदर आसान कर दिया। अब तुम्हारी वजह से मेरी ताकतों में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारी दोस्त पर वार करूंगी और उसे अपने काबू में कर लूंगी। आमना ने एक ज़ोरदार चीख मारी। उसके साथ ही वो बदरूह आमना पर झपटी। दूसरी तरफ सकीना का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल पर कोई वार कर रहा हो। ऊपर से एक अजनबी सा एहसास उसे बेचैन कर रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर उसका पूरा जिस्म दर्द करने लगा था। थक हार कर वो अपने बिस्तर पर उठ बैठी और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई।
चांद का नामो निशान तक न था। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और सकीना के चेहरे से टकराया। उसके सुर्ख रंग के बाल हवा में लहराने लगे और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने लगे। हवा का जो साथ अपने एक बहुत प्यारी खुशबू लाया था, उससे प्यारी खुशबू सकीना ने आज तक अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं सूंघी थी। उसके साथ ही उसे वो महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई आकर खड़ा हुआ हो। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो यही सोचने लगी कि वो बदरू दोबारा आ गई है। उस बदरू का ख्याल ही जिस्म से जान निकालने वाला था। उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। वो कोई मर्दाना आवाज़ थी। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक उसके कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। पुकार दोबारा सुनाई दी। इस बार उसने गौर किया तो उसे मालूम हुआ जैसे उसने ये आवाज़ पहले सुन रखी हो। अचानक उसके जहन में एक झमाका हुआ। वो तेज़ी से पलटी। पीछे अहमद खड़ा था। उसे देखकर सकीना खौफजदा हो गई और हकलाते हुए कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए? अहमद चलता चलता उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक जिनजाद हूँ। उसके चेहरे पर एक बहुत ही पुरस्रार मुस्कुराहट होती। उसके साथ ही उसकी आंखों का रंग बदला, वैसे ही जैसे आज से 2 दिन पहले सकीना ने उसकी आंखों के रंग को बदलते हुए देखा था। उसे यकीन हो गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो उसके बाजुओं में झूल गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, उसने देखा कि अहमद अभी भी उसके करीब ही बैठा हुआ था। उसे देखकर वो रोने लगी और कहने लगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी मुश्किल को मत बढ़ाओ। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा तुमसे बुरे लहजे में बात नहीं करूँगी और ना ही तुम्हारे सामने आऊँगी। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अहमद खामोशी से पहले उसकी बात सुनता रहा। जब वो खामोश हुई तो अहमद कहने लगा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। तुम्हारी जान खतरे में है। बहुत जल्द वो बदरू तुम्हें जान से मारने के लिए आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हें हाथ भी लगाए, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हिफाजत के दावे के साथ साथ अहमद ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। तुम सच कह रहे हो ना? तुम वाकई मेरी मदद करोगे? सकीना ने उससे एक के बाद एक सवाल किया। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उसी वक्त सकीना पर एक और राज खुला कि अहमद काफ़ी अच्छे से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। सिर्फ सकीना को देखने के लिए ही उसने सकीना की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। अगर वो चाहता तो सकीना के साथ रह सकता था और उस पर हावी हो सकता था, लेकिन चूंकि वो सकीना से मोहब्बत करता था, इस वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और ना ही उसे परेशान करना चाहता था। इसी वजह से वो दूर रहकर उसकी हिफाजत कर रहा था। पिछले कुछ अरसे में वो कोहकाफ चला गया था। इसी वजह से उसे सकीना के हालात के बारे में इल्म नहीं हुआ। हादसे के बाद जब सकीना यूनिवर्सिटी गई थी, उसी दिन ही वो कोहकाफ से वापस आया था। जब उसने सकीना को देखा तो उसे सारे वाक़े के बारे में इल्म हो गया कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं उसे कैसे जान छुड़वा सकती हूँ और मैं अपनी दोस्त की कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे बताओगे? तुम अपनी फ़िक्र मत करो, तुम्हारी हिफाजत मैं खुद करूँगा। और जहाँ तक तुम्हारी दोस्त की बात है, तुमने उसे खो दिया है। ये कहकर वो जिनजात खामोश हो गया। क्या मतलब मैंने खो दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने होश में तो हो? सकीना पागलों की तरह उससे पूछने लगी और सवाल करने लगी। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने घर वालों को इस बारे में खबरदार करो ताकि वो किसी आमिल से राब्ता करें, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और उससे खौफजदा होती रही। तुम्हारा खौफ ही उसकी ग़िज़ा थी। आज की रात अमावस की रात थी। आज की रात ही उसने तुम्हारी दोस्त को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना था। इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ नेक जिन्नात की बरादरी से है। जब तक मैं अपने सरदार से इजाज़त न लूँ, तब तक मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता और ना ही कोई ऐसा अमल कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हें खबरदार किया था। सकीना अपना सर दोनों हाथों में पकड़ कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दोस्त उसके खौफ की वजह से उस बदरूह की भेंट चढ़ गई थी। अब रोने का वक्त नहीं है। एक इंसानी वजूद को तो उस बदरू ने हासिल कर लिया है, मज़ीद अब मैं तुम्हें उसके हाथ नहीं चढ़ने दूंगा। वो एक शैतानी बदरू है जिसे एक बूढ़ा जादूगर अपने शैतानी मकसद में कामयाब होने के लिए हासिल कर रहा था।
लेकिन तुम दोनों ने उस बूढ़े आमिल के अमल को नाकाम बना दिया, जिससे ना सिर्फ उस बूढ़े आमिल की मौत हो गई बल्कि वो बदरू तुम लोगों की भी दुश्मन बन गई। उसके साथ ही उस रात सकीना को एक धागा दिया और उसे अपने कलाई पर बांधने के लिए कहा। सकीना ने उसे अपनी कलाई पर बांध लिया। जिनजाद ने उसे तलकीन की कि उसे कभी भी अपनी कलाई से नहीं उतारना। जब तक ये तुम्हारी कलाई में है कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और ना ही तुम्हारे करीब आ पाएगा, लेकिन जब भी ये तुम्हारी कलाई से उतरा तुम उस बदरूह का शिकार हो जाओगी। ये कहकर वो जिन्नात वहां से गायब हो गया। सकीना ने उसे आवाज़ दी लेकिन वो दोबारा उसके सामने हाजिर नहीं हुआ। अगला दिन सब घर वालों पर एक क़यामत बनकर टूटा। आमना का पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे कोई पूरी रात उसका खून चूसता रहा हो। उसकी रूह इस फ़ानी दुनिया से परवास कर चुकी थी। अगले दिन ही आमना का जनाजा था। पूरी बरादरी उस जनाजे में शरीक हुई थी। उसने उनके ख़ानदान का एक आमिल भी था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ उसे पता चल गया कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि आमना की वफ़ात के बाद भी वो बदरू उसी घर में मौजूद थी। आमिल के मौकलों ने उसे शैतानी बदरू से खबरदार कर दिया। उसने आमना की दादी से राब्ता किया और सारी बात बता दी। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि सकीना भी ख़तरे में है, क्योंकि वो आमना के साथ ही मौजूद थी। जनाजा पढ़ाने के बाद वो आमिल वहीं रुका रहा। मेहमानों को दूसरी हवेली में ठहरा दिया गया, लेकिन आमिल को हैरत हो रही थी कि सकीना को उस बदरूह ने अभी तक नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, क्योंकि आमना की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही उसे सकीना के अंदर दाखिल हो जाना था। जब उसकी नज़र सकीना के हाथ में लगे धागे पर पड़ी उसे सारी कहानी समझ आ गई, लेकिन इस बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा और सकीना को अपने सामने बुलाकर उससे सब कुछ दोबारा पूछा। फिर सकीना ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया जो भी उसके साथ उस दिन हुआ था। तमाम घर वाले सकीना से बहुत नाराज़ थे कि उसने उन्हें पहले ये बात क्यों नहीं बताई, लेकिन सकीना ने कहा कि वो बेबस थी। वो जब भी बताने की कोशिश करती बदरू उसे रोक देती। चच्ची अपनी बेटी के गम में सकीना को बुरा भला कह रही थी। दादी पहले ही अपनी एक पोती को खो चुकी थी। वो अपनी दूसरी पोती को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सबको खामोश रहने का कहा और आमिल को अमल करने के लिए कहा। वो पूरी रात आमिल उनके घर में बैठकर अमल करता रहा और पूरी रात घर में खौफनाक आवाज़ें गूंजती रहीं। घर के तमाम अफराद को वो रूह चलती फिरती नज़र आ रही थी, लेकिन सबको ये कहा गया था कि वो उस बदरू से बेनियाज बने रहें। सुबह के वक्त वो बदरू आमिल के सामने हाजिर हो गई। आमिल ने उसे सकीना का पीछा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और मजबूरन आमिल को उसे जलाना पड़ा। उस घर के ऊपर से शैतानियत के बादल छट चुके थे। जिंदगी दोबारा से मामूल पर आ गई, लेकिन सकीना आमना की कमी को शिद्दत से महसूस करती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी उसी जिनजात के बारे में सोच रही थी जब उसे वही खुशबू सूंघने को मिली जो उसने उस दिन सूंघी थी जब जिनजात उससे पहली दफ़ा मिलने के लिए आया था। थोड़ी ही देर बाद जब जिनजात उसके सामने हाजिर हो गया, जिनजात की नज़र जब सकीना के हाथ में बंधे धागे पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगा। अभी तक उसने धागा बांध रखा था, जबकि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका था। जिनजात उसे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा करने के लिए आया था। बिलाशुबा वो जिनजात की पहली नज़र का इश्क था, लेकिन जिनजात अपनी हदूद को अच्छी तरह जानता था। सकीना की मदद करके उसने अपनी मोहब्बत को अमर कर दिया था। सकीना से चंद बातें करने के बाद वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया और उसके साथ ही सकीना का दिल भी बोझल हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।